Dr. Vijay Kumar Singh. So, as we discussed in the last class about line drawing algorithms, and I also described about what is a line and how it's drawn on our screen. And we know that a digital image is a collection of the pixels or a dots. So, line is also a collection of the pixels, and to draw a line we need to find out the coordinate value of each pixels. This is a line and it is a collection of pixels. So, we know that we have to find out the coordinate value of each dots. Okay, first of all I would also want to describe straight line concepts, little bit concepts. What is a straight line? So, we know that y equal to mx plus c, and here y is the y coordinate, x is the x coordinate, and m and c is a constant value. And what is the m? M is the slope of line. What is the slope? The angle of the line. If a line is drawn like this, in this line every point have a angle with axis. Assume that this is 30 degree. So, 30 degree is the slope of line. This is m. M equal to tan theta. M is a tan theta, and the value of the theta in this case 30 degree. So, m is the slope of the line. So, every line is a straight line which have the slope that will be same on its each point. तो हर लाइन अगर एक स्ट्रेट लाइन है, जो भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो उसका जो स्लोप है उसके हर पॉइंट पे स्लोप वैल्यू सेम होगा. जैसे यहाँ पे 30 डिग्री का मैं एज्यूम किया मैंने, तो 30 डिग्री अगर इसके पहले पॉइंट का, ये अगर ये लाइन है तो ये डॉट 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 कलेक्शंस बन रहा है, तो ये अगर पहले पॉइंट का पहले पिक्सल का एंगल 30 डिग्री है तो दूसरे पिक्सल का भी एंगल 30 डिग्री होगा. दैट विल बी द स्लोप m. तो एवरीवेयर द स्लोप वैल्यू विल बी सेम. वी ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू dy बाई dx. हम m की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? दूसरा तरीका है m इक्वल टू dy बाई dx. नाउ व्हाट इज द dy एंड व्हाट इज द dx? द dy इज द डिफरेंसेज ऑफ y coordinates and where the dx is the differences of x coordinate. How do we find the dy and the dx? This is the simple equations which you already studied in your +2, but as a refreshment I am describing here. y2 minus y1 is the dy. So let's, if the value of x1 y1 and this is the x2 y2, this is the value of two end points of the line. Assume if the x1 is 50 and y1 is 100, and here x2 is 150 and y2 is 200, then what will be the dy? Dy will be 200 minus 100 equal to 100. And what will be the dx? Dx will be x2 minus x1 is equal to 150 minus 50 is equal to 100. Both are 100 100. We got 100 100. Then what will be the value of m? It will be dy by dx
which is 100 by 100, m equal to 100 by 100 and it equal to 1. So when the value of slope is 1, it means that the angle of line must be 45 degree. How? If we put here 45 degree, what is the value of tan 45? The tan 45 is equal to 1. So m equal to 1. तो 45 डिग्री एंगल का मतलब है कि उसका स्लोप का वैल्यू m है. इट मीन्स दैट कि x और y में जो डिफरेंसेज हो रहा है दैट विल बी सेम. Same type of program I already given you in my previous classes. जब शुरुआत के में जब मैंने पुट पिक्सल फंक्शंस के बारे में बताया था तो मैंने उस वक्त भी ये डिस्क्राइब किया था कि 45 डिग्री के एंगल पे जो लाइन ड्रॉ होता है उसमें x1 और y1 दोनों कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट होता है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा सेम आएगा. तो इस तरीके का प्रोग्राम मैंने दिया था. लेकिन दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होती है लाइन ड्रॉ करने में. यहां पे अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं देन देयर आर नो प्रॉब्लम हाउ टू ड्रॉ दिस लाइन. It is very simple. We just give the increment in x1 and y1 constantly and we find the x2 and y2. For the example, the x1 and y1 is 50, 100 and x2 and y2 is 150 and 200. And if we want to draw the line of this using these two end points, we don't need to use the line function. We can use the put pixel function and we can draw this line very simply form. How? We'll write an loop where I use what is the difference? 100, 100. So I will use I equal to 1, I is less than equal to 100, I plus plus and here I put pixel. हम यहाँ पे put pixel देते हैं x1, y1 और जो भी कलर हमको लेना है मैंने ले लिया रेड. अब हम क्या करेंगे? x1 प्लस प्लस y1 प्लस प्लस. वेरी सिंपल. तो हमने यहां पे क्या किया? x1 प्लस प्लस y1 प्लस प्लस. अब ये लूप चलेगा 100 टाइम्स. x1 है 50, y1 है 100, तो ये अगला पॉइंट पे जाएगा. x1 हो जाएगा 51, y1 हो जाएगा 101. फिर लूप प्रोसीड करेगा. x1 प्लस प्लस होगा, x1 का वैल्यू होगा 52, y1 का वैल्यू होगा 102. फिर लूप प्रोसीड करेगा. x1 का वैल्यू होगा 53, y1 का वैल्यू होगा 103. कॉन्स्टेंटली दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये 100 टाइम्स चलने के बाद x1 का वैल्यू होगा 150 और y1 का वैल्यू होगा 200. यानी कि जो हमारा एंड पॉइंट्स है, तो हमको एंड पॉइंट्स मिल गया, हमको हर पॉइंट्स का वैल्यू मिल गया. तो इट इज वेरी सिंपल टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द 45 डिग्री एंगल बिकॉज वी नो दैट देयर आर द ऑलवेज इंक्रीमेंट इन बोथ द कोऑर्डिनेट्स. तो x1 और y1, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स दोनों में हर पॉइंट्स पे इंक्रीमेंट चलेगा अगर लाइन का स्लोप यानी कि m 45 डिग्री का हो. तो जब हम जान रहे हैं कि हर पॉइंट पे इंक्रीमेंट चलेगा तो सिंपली हम इंक्रीमेंट दे देंगे x में भी और y में भी और हमको हर पॉइंट्स का वैल्यू मिलता चला जाएगा. पुट पिक्सल से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे. लेकिन दिक्कत कब होगा? दिक्कत तब होगा जब हमारे लाइन का स्लोप कांस्टेंट नहीं बढ़ेगा. जैसे अभी मैंने यहां पे दिया 50 और 100 और यहां पे 150. अब मैं इसको कर देता हूं 170 और ये 200, y2 200. तो y2 हमारा 200 है, y1 100 है, तो dy आया 100 और x2 मैंने लिया 170 और x1 है 50, तो ये क्या हो गया 120. तो अब dx के 120 आने का मतलब और dy के 100 आने का मतलब ये कि dx में 120 का इंक्रीमेंट हो रहा है और y में सिर्फ 100 बार इंक्रीमेंट हो रहा है. तो अगर हम ऐसे कांस्टेंट लूप चला देंगे तो दोनों में बराबर इंक्रीमेंट जाना चाहिए.
लेकिन यहां पे अब अलग अलग इंक्रीमेंट जा रहा है, तो अलग अलग इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 20 बार ज्यादा बढ़ेगा x और y 20 बार कम बढ़ेगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि चलो 20 बार हम y को रोक लेंगे, ये 20 बार कहीं पे भी रोक लेंगे, रोक तो सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि हम कहीं पे भी रोक ले। तो इसका मतलब ये है कि दैट विल बी द एक्चुअल पॉइंट्स विच वाज यूज्ड फॉर द लाइन। एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू मालूम करना, वो कौन सा 20 पॉइंट्स है जहां पे x में तो इंक्रीमेंट हो रहा है बट y में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई वी नीडेड द लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम्स। हम वैसे कंडीशंस के लिए जहां पे हमको मालूम नहीं है कि कौन से पोजीशन पे किस कोऑर्डिनेट पे इंक्रीमेंट होना है, किस में नहीं होना है, कहां पे कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगा, उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम्स की। अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका अगर स्लोप 45 डिग्री है तो हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हमारे पास है कि इफ m इक्वल टू 45 डिग्री देन द लाइन विल बी ड्रॉन कॉन्स्टेंटली, वेरी सिंपली। दूसरा कंडीशन भी हम देख लेते हैं। अगर स्लोप का वैल्यू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे? तो 0 यानी कि tan थीटा का मान 0 आना, 0 आने का मतलब थीटा 90 डिग्री। तो यानी कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल हो। तो इसमें क्या करना है? इसमें हमको सिर्फ y में इंक्रीमेंट दे देना है, x दोनों जगह पे सेम रहेगा। तो ये 2 कंडीशंस को हम इग्नोर कर लेंगे अब, क्योंकि अब जो हम एल्गोरिथम्स जो हम लोग पढ़ेंगे उन एल्गोरिथम्स में